हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीबीएसई के जो है कक्षा 11th की इतिहास, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है समय की शुरुआत से। ये इतिहास का चैप्टर है, यानी एनसीईआरटी जो है हम करेंगे सीबीएसई के क्लास 11 हिस्ट्री जो है फ्रॉम द बिगेनिंग ऑफ द टाइम। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और ये एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ तक कि एग्जामिनर इससे अधिक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we have discussion most important chapter here from the beginning of the time. There is a CBSE NCERT chapter class 11th history. There is the most important. There is a question arrive here. Discuss the progress made by the early man in the field of art. There is the most important here. Discuss the progress made by the early man in the field of art. There is the most important question here. You know that you first of all understand the question and next there is the answer here. The early man was much interested in the field of art. He found that art is a unique method to express his feelings. So he tried his hands both in a painting and sculpture. That's the most important, painting and sculpture here. First of all here, interest in the early man, their field of art, there is a paintings. The paintings are very favorite for the early man here. In the very beginning, the early man tried to express everything which impressed him in his daily life. That is important. And first point here, according to the paintings here, he was much impressed by the scene, absorbing natural beauty. This is important. He was much impressed by seeing, absorbing a natural beauty. Is the flora and fauna only. There is included here the sun, the moon, star, river, etc. There is a natural beauties here, flora, fauna, sun, moon, star, rivers, etc. There is the most important, including the paintings here, and also found of hunting picture. Next point here, hunting was a part of his daily routine. Hunting was a part of daily routine for the early man. So he has painted many pictures depicting their hunting themes. And the next year, the painting depicting hunting themes has been the emphasis on the wall of the caps and ceilings on the wall. There is a most important painting sites here. There are caps and ceilings on the walls. And the next, for the example, the cap of Altamira's, Lascaux and Chevrolet were especially well known, and Altamira's caps
were discovered by the Marcelino Sanz de Centolas and the daughter in 1879. That is the most important example here. And the last cause, as a shovel, is the caps come into the lemon light in 1894. 1894, there is the most important period time here, lemon light here. And these caps have a plenty of beautiful pictures here. The next point here, most of these paintings are of horses, bisons, mammoths, bears, leopards, owls, etc. And there is a use of black, red, yellow, and white colors has been widely used for the engravings this painting. This is the most important here. Black, red, yellow, white color used in this painting, and maximum paintings here present horse, bisons, mammoths, bears, and leopard and owls. This is the most important here. A number of questions has been to put forward regarding the above mentioned paintings here. You know that painting and the question, this is the most important here. And scholars have a different opinion in their regards. Scholars have a different opinion in this regard of their paintings and pictures here. And some scholars are of the view that is painted these pictures of beauty, this wall and ceilings on their caps, will the other put forward their agreement as they did so to pass their knowledge from one generation to another. These are the most important things here. The pictures and there is a wall and ceilings here, caps. There is a most important for the knowledge of next generation. And the next here, sculpture. That's the most important point here. Sculptures here, small size statues were built by the early man, representing the human and animals. And most of humans statues were women and recovered for several places in Europe. And these female statues are called a Venus goddess. That's the most important point here. आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं के जो है इतिहास, समय की शुरुआत से, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है समय की शुरुआत से। और ये आपके लिए जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे जो कि और भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चन कम रहेगा और समझ अधिक रहेगी। तो इसी की शुरुआत हम करते हैं। यहाँ पर कला के क्षेत्र में आदि मानव द्वारा की गई प्रगति की चर्चा करें। देखिए, कला के क्षेत्र में आदि मानव द्वारा की गई प्रगति जो है एग्जामिनर के बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन फेवरेट रहा है और ये सदैव ही एग्ज़ाम में देखने को मिला है हमें। इसलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर ने इसको प्राथमिकता दिया है कि ये क्वेश्चन हमेशा ही एग्जामिनर का फेवरेट रहा है 11वीं क्लास के बच्चों के लिए जिन्होंने इतिहास ले रखा है। इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये बात जानना चाहिए कि कला के क्षेत्र में आदि मानव द्वारा की गई प्रगति किस प्रकार की थी। आखिर उन्होंने कला में कैसे अपने आप को महारत हासिल किया और कला से वो क्या दिखाना चाहते थे। क्या उनको समझ थी कि पेंटिंग कैसे होना चाहिए, और पेंटिंग के बारे में उनको नॉलेज था तो वो कलर कैसे बनाया करते थे। प्रश्न यहाँ पर बहुत है और आंसर हम यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चनों के अंतर्गत ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको ये वीडियो को पूरा देखने की आवश्यकता रहेगी, तभी आपको हर एक बात समझ में आएगा। कहते हैं कला के क्षेत्र में आदिमानव द्वारा किया गया आरंभिक मनुष्य कला के क्षेत्र में बहुत रुचि थी। अगर हम आदि मानव की बात करें तो उनको कला के क्षेत्र में बहुत रुचि थी। उन्होंने पाया कि कला अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक अनोखा तरीका है और ये बात उनको समझ में आई जब उन्होंने चित्रों का जो है समावेश किया।
इसलिए उन्होंने पेंटिंग और मूर्तिकला दोनों में अपना हाथ आजमाया। कहते हैं पेंटिंग के साथ उन्होंने मूर्तिकला में भी जो है अपना कौशल को दिखाया, और ये कौशल ही आज उनके बारे में बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में है, जो ज़रूरी भी था। सबसे पहली अगर हम बात करें कला के क्षेत्र में, यानी चित्रकारी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर देखा जाए तो आरंभ में आदि मानव ने अपने दैनिक जीवन में उन सभी चीज़ों को व्यक्त करने का प्रयास किया जो उसे प्रभावित करती थी। कहते हैं चित्रकला एक ऐसी चीज़ है जो हम दिनचर्या में देखते हैं, जो समाज को प्रभावित करते हैं, हम उसी को ही चित्रित करते हैं। तो आदि मानव ने भी कुछ ऐसे विचारधारा को जो है यहाँ पर पेश किया कि जो उनको दैनिक जीवन में वो करते थे और जिनसे वो प्रभावित होते थे, उन्हीं चित्रों को जो है उन्होंने अपने चित्रों में समावेश किया। और वह प्राकृतिक सौंदर्य अथवा वनस्पति, जीव जंतु, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियाँ आदि देखकर बहुत ही प्रभावित हुए और शिकार भी शौकीन थे। यानी देखा जाए तो उनके चित्रकारी में जो है वनस्पति, जीव जंतु, सूर्य, चांद, तारे, नदियाँ, और जैसे वो शिकार किया करते थे तो उन चित्रों को ही अपने जो है चित्रों में उन्होंने समावेश किया, बनाया। यदि अगली पॉइंट पे नज़र करें तो कहते हैं शिकार करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। यानी वो डेली जो है शिकार करते थे, वही जीवन का उनका महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए उन्होंने शिकार विषय को दर्शाते हुए कई चित्र बनाए, और ये चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण भी था क्योंकि इनसे उनको आइडिया मिलती थी। चित्रों को देख के वो शिकार की जो है रणनीति बनाया करते थे। गुफाओं की दीवारों और दीवारों के छत पर शिकार विषय को दर्शाने वाले चित्र की परिकल्पना की गई है। जितना भी हमें गुफाओं में चित्र मिली और दीवारों पे मिली, इनमें सबसे अधिक जो था शिकार के करने के तरीके और जो है रूल रेगुलेशन को उन्होंने जो है बेखूबी प्रदर्शित किया। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अल्तामिरा और लास्काक्स और जो है जय वेट की गुफाओं में विशेष रूप से ये सारे प्रसिद्ध चित्र आपको देखने को मिलेगा। ये सारे उदाहरण हैं। अल्तामिरा हो गया, लास्काक्स हो गया, चैवेट हो गया, तो सारी गुफाएं काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं अल्तामिरा गुफाओं की खोज 1869 ईस्वी में मार्सेलिनो सैंज डी एंसेतुओला और उनकी बेटी ने की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये खोज थी। और अल्तामिरा गुफाओं की खोज देखा जाए 1869 में की, और उनके बेटी और उनके पिता ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया इस खोज को करने में। लास्कास और चैवेट गुफाएं 1894 में सुर्खियों में आई। यानी इसके बारे में हमें तब पता लगा जब 1894 में ये अखबारों में छपी उस समय, और उस समय जो था ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इन गुफाओं में ढेर सारी खूबसूरत तस्वीरें थी जिनको देख के जो है आज के समय के मनुष्य हैरान हो गए कि ये आदि मानव भी क्या इन कलाओं के इतना ज्ञाता थे, इतनी समझ थी। देखा जाए तो इनमें अधिकांश जो थे पेंटिंग घोड़े, बाइसंस, मेमथ, भालू, तेंदुआ, उल्लू आदि की थी। देखा जाए तो उनसे इनको काफ़ी लगाव थी और इन चीज़ों को उन्होंने अपने दिनचर्या जीवन में जो है अनुभव किया था। इसलिए उन्होंने इन पिक्चरों को जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया अपने चित्रकला में। और इन चित्रों को करने के लिए काले, लाल, पीले, सफ़ेद रंगों का व्यापक रूप से उन्होंने प्रयोग किया। उपयुक्त चित्रों के संबंध में कई प्रश्न सामने आए जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता होगा आपके मन में कि इतने तरह के कलरों के बारे में उनको नॉलेज कैसे थे और कैसे बनाया करते थे। आज तो हम सिंथेटिक बनाना जानते हैं, बट उस समय काले, लाल, पीले और सफ़ेद रंग जैसे चीज़ों का कैसे वो समावेश करते थे। तो दोस्तों ये मैं बता दूं, इनके कलर का जो उस समय तकनीक थी वो भी प्राकृतिक ही थी।
यानी जो फल फ्रूट जो मिलता था, पत्तियाँ होती थी, उनको वो पीस पीस के इन रंगों को प्रयोग करते थे और ये सारे प्राकृतिक रंग होते थे। इनमें कोई बनावटी नहीं होता था और किसी प्रकार के जो है उसमें मिलावट नहीं थी। वो स्वयं ही प्राकृतिक में मिलने वाले चीज़ों का उपयोग करके घोड़े, बाइसन, मैथन, भालू, तेंदुए, उल्लू आदि के अधिकांश चित्रों का जो है समावेश करते थे, बनाया करते थे, जो आज के समय काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके पश्चात अगली पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इन संबंधों में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। देखिए, जितने विद्वान होते हैं उनके उतने ही मत होते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि उन्होंने गुफाओं की दीवारों और छतों को सुंदर बनाने के लिए इन चित्रों का चित्रित किया। देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, हम विचारधारा बदल नहीं सकते। तो कितने विद्वानों ने इस बात को इसलिए यहाँ पर बताया कि उनका शायद इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरों को जो है दीवारों के छतों पर रखने का मतलब था कि वो अपने जगह रहने की जगह को जो है सुंदर बनाना चाहते थे। जबकि अन्य ने अपना तर्क दिया कि उन्होंने अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ऐसा किया। कहते हैं दूसरी बात काफ़ी सार्थक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो चित्रों का उपयोग जो है शिकार करने की पद्धतियों पर करते थे, रणनीतियों पर करते थे। तो जर्नल सी बात हो, चाहते थे कि उनके आने वाले पीढ़ी भी शिकार के पद्धतियों को जाने और समझे, इसलिए उन चीज़ों को शिकार करने के ढंग को वो चित्रों में पिरोए करते थे। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कि वो अपने ज्ञान को पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ऐसा किया करते थे। उसके पश्चात है मूर्ति कला। कहते हैं आरंभिक मनुष्य द्वारा छोटे आकार की मूर्ति बनाई गई जो मनुष्य और जानवरों के प्रतिनिधित्व करती थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अधिकांश मानव मूर्तियों महिलाओं की थी और यूरोप में कई स्थानों पर बरामद भी की गई और इन सारी नारी प्रतिमाओं को जो है वीनस देवी कहा जाता था। यानी उस समय वीनस देवी के रूप में जो है ये मूर्ति कला बनाया करते थे, यानी मूर्ति कला में भी उनका महारत हासिल था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 11th के बच्चों के लिए और ये आपके लिए भी जो देख रहे हैं। तो इसके लिए 11th के हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, इसलिए आपको इतना ज़रूर करना है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप चाहते हो कि दूसरे बच्चों को भी ये बात समझ में आए और वो भी इस ज्ञान को जो है ग्रहण करें, तो इसके लिए एक ही कार्य है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए। इससे जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और लाभान्वित होंगे। पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो जर्नल सी बात है, जिनको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में ही आपका फ़ायदा है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।